مائک کے سینٹر میں، مائک کے سینٹر میں. اب ٹھیک ہے یار ریڈی ہیں آپ سب؟ کویسچنز کریں گی مجھے. اچھا میڈم یہ بتائیے کہ اس سے قبل آپ کی جماعت کہتی تھی کہ فوج کے اندر تقسیم ہے، کیا آج بھی تقسیم ہے یا وہ تقسیم ختم ہو گئی ہے؟ موبائل نیچے کر لو یار. میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ کبھی بھی میری جماعت میں سے کسی نے دی. میرا نہیں خیال. آپ نے مجھے کہا تھا. مریم صاحب، کیا آپ آج بھی انہی بیانات پر قائم ہیں؟ دیکھیں وہ بیانات فیکٹس پہ مبنی تھے اور فیکٹس کبھی نہیں بدلتے. مریم صاحبہ دیں گے آپ ایک طرف پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سیلاب سے جو متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہیں، اس کا امام صاحب جو ہے اسلام آباد کی باتیں کر رہے ہیں کہ پورا ملک جام کر دیں گے. اسلام آباد کہہ رہے ہیں، آج بھی پریس کانفرنس کرنے کا اعلان کیا. تو حالات اس وقت کس طرف جا رہے ہیں پاکستان کے حالات کے بارے میں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب ذرا ٹائم کی خاموشی اختیار کریں تاکہ میں بات کر لوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے یہ بات کی تھی اور میں یہ بات رپیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ایک شخص جو کہ فتنہ ہے، انتشار ہے، تباہی ہے پاکستان کی، اور پھر اوپر سے فورن فنڈڈ ہے. ان طاقتوں نے جو پاکستان کو آگے چلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی اور پاکستان کی دشمن طاقتیں، انہوں نے اس کو فنڈ کیا ہے. اور یہ کوئی تخیلاتی بات نہیں ہے، اس کا ایویڈنس ایک ایک صفحے پر ای سی پی کے ڈیسیجن میں ہے کہ اس کو کن کن لوگوں نے فنڈ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس شخص کو پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کی سیاست کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کی جو مورل فیبرک ہے، جو پاکستان کی سوسائٹی ہے، اس کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کی نئی نسل کو تباہ کرنے کے لیے پیسے دے کر، ڈالرز دے کر لانچ کیا گیا ہے. تو وہ شخص تو یہی کرے گا، چاہے وہ حکومت میں ہو. وہ تب بھی یہی کرے گا. جب وہ حکومت میں تھا تو اس نے آئی ایم ایف کے ساتھ جس طرح کی ڈیل کی، جس کے نتائج آج بھی پاکستان بھگت رہا ہے، اور پاکستان کی معیشت کو اس نے تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا، لینڈ مائنز بچھا کے چلا گیا، جس کو آج نہ حکومت اپنا سر توڑ کوشش کے باوجود ایک ایک کر کے چن رہی ہے، بہتری کے راستے پہ لانے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ وہ کر کے چلا گیا اس ملک کے ساتھ، لانگ ٹرم اس کے بہت امپلیکیشنز ہیں. اور آپ یہ بھی ایک دیکھیں کہ جاتے جاتے پھر وہ آئی ایم ایف کے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے خود ہی جو معاہدہ کیا تھا، اور اس میں اسٹیٹ بینک کو بھی گروی رکھ گیا اور فورن ایجنٹس کو لگا کے چلا گیا. پھر وہ جاتے جاتے وہ معاہدہ بھی پھاڑ کے چلا گیا، پرائسز ڈراپ کر کے چلا گیا. اور آپ یہ دیکھیں آج تک پاکستان کی معیشت اس اٹیک سے سنبھل نہیں پائی. تو اگر حکومت میں ہو تو پاکستان کی تباہی کرے گا، حکومت سے باہر ہو تو جتھے لے کر حملہ آور ہوگا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، سب انسٹیٹیوشنز، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ افواج پاکستان ہو، چاہے وہ پولیٹیکل فریٹرنیٹی ہو، چاہے وہ حکومت ہو، میں سمجھتی ہوں کہ سب کو اس چیز پہ کنسنسس ہونا چاہیے کہ یہ ایک فتنہ ہے جو تباہی کے لیے لانچ کیا گیا ہے، جس کی شر سے نہ کسی کا بیٹا محفوظ ہے، نہ کسی کی بیٹی محفوظ ہے، نہ کسی کی بیوی محفوظ ہے، نہ کسی کا کوئی رشتہ دار محفوظ ہے. تو یہ اس شخص کو جس طرح جو جج تھی زیبا، جس طرح سے اس نے اس کو جلسے میں کھڑے ہو کے ان کے بارے میں اس طرح کے کلمات ادا کیے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ شخص وہی کر سکتا ہے جو جس کی یا تو دماغی صحت جو ہے وہ جس کی سینٹی کوشچن پہ ہو، یا پھر وہ شخص جس کو پیسے دے کر، جو کہ ثابت ہو گیا اس ملک کے تباہی کے لیے لانچ کیا. مریم صاحبہ اور دوسری آپ نے سیلاب کی بات کی. ہمارے ملک پر ایک آفت آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سیلاب زدگان کو. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، شہباز شریف صاحب کی کسی صوبے میں حکومت نہیں ہے، لیکن شہباز شریف صاحب یہ دیکھے بغیر کہ کون سا صوبہ کس جماعت کے پاس ہے یا کس جماعت کی حکومت ہے کس صوبے میں، وہ ارسپیکٹو آف دیٹ وہ ہر جگہ جا رہے ہیں، روز جا رہے ہیں، ایکچولی جا کے
मदद कर रहे हैं। ये नहीं कि टीवी पे बैठ के एक टेलीथॉन कर दी, 5 अरब रुपए जमा हो गए, बाद में पता चला कि वो 5 अरब रुपए जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वो इमदाद भी डाउनलोड हो गई, राशन के पैकेट भी सोशल मीडिया पे बट गए और फिर सोशल मीडिया पे ही वो बांटे गए। और असल में क्या हुआ कि जो टैक्स पेयर का पैसा है जो इस वक्त आपको लगाना चाहिए था सैलाब ज़रगान के ऊपर, आप उसकी एक्सपेंस के ऊपर आप इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं, गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी यूज़ करते हैं और जाते हैं फ़ोटो सेशंस के लिए। सैलाब ज़रगान को ये मदद की ज़रूरत नहीं है, उनको ये एहसास होना चाहिए कि पंजाब में उनकी हुकूमत है और KPK में उनकी हुकूमत है और यही दो जगह हैं जहाँ पर बहुत बड़े फ्लड्स आए हुए हैं। मरियम साहबा, तो आप जिस जगह पे आपकी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में आपकी हुकूमत है, KPK में आपकी हुकूमत है, तो आप फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ डाल के पतली गली से फरार नहीं हो सकते। आपका सबसे बड़ा स्टेक है इस गवर्नमेंट में, आप जिम्मेदार हैं। मरियम साहबा आपने इसी जगह पे खड़े होके आपने कहा था कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के गुनाह में आप शामिल नहीं थी। अब अगर हुकूमत दोबारा ये गुनाह करती है तो क्या आप इसकी मुखालफत करेंगी? देखिए, मैं एक तो जब ये सवाल उठेगा कबल अज़ वक्त मैं स्पेकुलेशन पे इसका जवाब नहीं देना चाहूँगी। ये गुनाह है या नहीं? एक सेकेंड। दूसरी बात ये कि जिस शख्स ने ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के छेड़ी है उस शख्स का नाम फितना खान है, उसका काम ही फितना डालना है। और मैं अब वो किसी एक बयान पे अपने टिक जाएं कहीं, आप देख लें कि जब वो गवर्नमेंट में थे और एक पेज पे थे तो वो सिपा सलाह की तारीफ़ें हमें दिन रात सुनने को मिलती थी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब वो हुकूमत से निकाले गए तो उन्होंने उनको मीर जाफ़र भी कहा, मीर सादिक भी कहा, XYZ भी कहा और फिर उनको न्यूट्रल कहा, जानवर कहा। और अब अचानक अगर वो इस बात पे आ जाए, पहले वो किसी एक स्टांस पे खड़े हो तो मैं उसके ऊपर आप अपने असूल पे खड़ी हैं। मैं अपने असूल पे खड़ी। मरियम साहबा, इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर इलेक्शन की तारीख दी जाए तो तमाम चीज़ों पे बात कर सकते हैं, मुज़ाकरात के लिए वो तैयार हैं। और ज़ेबा चौधरी साहिबा के हवाले से भी कहा है कि मैं माजरत करने के लिए भी तैयार था। देखिए, मेरी बात सुने, पहले आप किसी की इज्जत उछाल दें, किसी खातून जज को आप उसकी तस्लील करें एक जलसे में खड़े होकर, बाद में आप आके माफ़ी मांग दें, तो ये तो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है कि जो कुछ आपने करना था वो कर दिया। उसके बाद डैमेज कंट्रोल के लिए क्योंकि अपनी ज़ात पे बात आ गई है तो डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए आप ये कर दें, ये ऐसा नहीं होगा। ये हम सुन के हमारे कान पक गए कि लॉ की नज़र में सब बराबर है। और यही काम अगर किसी ऐसे इंसान ने किया होता जो सियासी ना होता या सियासी लीडर ना होता तो वो बेचारा तो अभी निहाल हाशमी की तरह, तलाल चौधरी की तरह, दानियाल अजीज़ साहब की तरह कोई बेचारा अगले 5-10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई। उन्होंने तो किया ही कुछ नहीं। माफ़ी मांगने के बावजूद निहाल हाशमी साहब के साथ ये हुआ। तो इसलिए कोई बच के निकल जाए क्योंकि उसने सियासी जमात का लिबादा ओढ़ा हुआ है, तो ये काबिले माफ़ी नहीं है चीज़। और जजेस को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि उनको इस चीज़ को देखना चाहिए कि वो क्यों एक फितने को मजबूत होने का अनजाने में मौका दे रहे हैं। कल को किसी का घर, किसी की इज्जत जो है वो महफूज नहीं होगी और उसमें जुडिशरी शामिल होगी। इलेक्शन की डेट मिल जाए तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, वरना लॉन्ग मार्च की डेट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े KPK असेंबली और चले जाएं इलेक्शन। वो कह रहे लॉन्ग मार्च करूँगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये इनकलाब जिसकी अभी एक्सपायरी हुई है ना, ये जो जाली इनकलाब था 2 महीने से ज़्यादा चल नहीं सका और आज फिर अपना CV लेके घूम रहे हैं और बैसाखियाँ ढूंढ रहे हैं। वो बैसाखियाँ जो हट चुकी थी अब वो बैसाखियाँ ढूंढ रहे हैं। तो ये जो जत्थे लाकर प्रेशर डालकर जो इलेक्शन हो या कोई और हो, ये कोई जत्थों के साथ प्रेशर के साथ कोई जो भी ये बुली करने का तरीका है ना, इस पे ना हुकूमत को इस इंसान की कोई बात सुननी चाहिए, ना इसको कोई स्टेक होल्डर समझना चाहिए। ये पाकिस्तान की तबाही है, स्टेक होल्डर नहीं है। मैडम, खान साहब ने रवा माही एहतजाज की कॉल दे दी है। वो जब भी सियासी ग्राफ देखे तो जब भी कॉल देते तो लोग उनके साथ निकलते हैं और इसी माह उन्होंने आपका सवाल गलत है। जब मैडम भी वो कॉल देते हैं लोग नहीं निकलते। मैडम, लास्ट टाइम 25 मई को 25 सवाल मैडम आप पूरा सुन लें कि 25 मई का आपको याद है ना पहले जो कॉल दी थी, तो वो उन्होंने यही सवाल है कि इस्लामाबाद में वो आ रहे हैं कि आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है?
वन बाय वन मैं हूँ ना, इधर ही हूँ, सबके सवाल लूँगी। सियासत में मजहब कार्ड के नुकसान हमने देखे हमेशा नुकसान हुआ है। जो जावेद लतीफ ने मजहब कार्ड इस्तेमाल किया है, क्या आप दुरुस्त समझते हो मजहब कार्ड इस्तेमाल? देखिए, मैं एक बात बहुत ऑनेस्टली समझती हूँ और इसी चीज़ के मैं खिलाफ हूँ कि सियासत के अंदर मज़हब एक बहुत बहुत मुक़द्दस चीज़ है। उसको सियासत जैसी घटिया चीज़ों के लिए, अपनी ज़ाती सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और यही वजह है कि मैं सियासत के अंदर घटिया चीज़ें नहीं, अपनी ज़ाती सियासत के लिए, अपने ज़ाती मकासद के लिए मैं कह रही हूँ। सियासत तो बहुत बड़ी, सियासत तो इबादत है। अगर उसको सही तरह से, सियासत सिर्फ इक़्तिदार की तगोदौ नहीं, सियासत इबादत है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप अपनी ज़ाती मकासद के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए आप मज़हब को इस्तेमाल करें तो वो बुरी बात है। और देखें, क्योंकि मैं इस चीज़ को भुगत चुकी हूँ, मैं इस चीज़ की विक्टिम हूँ। एहसन इकबाल साहब ने गोली खाई, नवाज शरीफ साहब के ऊपर इन्होंने कीचड़ उछाला, और नवाज शरीफ जैसे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के ऊपर एहसन इकबाल साहब भी ख़ानदानी मजहबी आदमी हैं, उनके मजहबी अकायद भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसे लोगों को जब आप तौहीन का इल्ज़ाम लगाते हो तो उन जलसों में, उन जो सिट-इन्स थे, जो धरने थे, उनमें इमरान खान जाया करते थे। मेरी वालदा का इलेक्शन था, NA 120 हुआ करता था वो, मैं उनका इलेक्शन, जब उनको कैंसर हो गया वो चली गई, मैंने उनका इलेक्शन लड़ा। आप यकीन करें कि PTI ने अपना मुकदमा उधर लड़ा ही, इलेक्शन जो है वो तौहीन के ऊपर है। तो मज़हब को, और जिस जमात को इन्होंने मज़हब के लिए इस्तेमाल किया, उनके धरनों में जाके शामिल हुए। जब अपनी हुकूमत आई तो मस्जिदों में घुस के उनको शहीद किया, उन पर गोलियां चलाई, निहत्तों को मारा। तो ये ड्रामा जो है ना, ये कौम के सामने आना चाहिए और इसको काइंडली मज़हब की आड़ में छुपाने का मौका ना दें। मैं ये समझती हूँ कि जो शख्स, मज़हब आपका ज़ाती मामला है, ये आप नमाज पढ़ते हैं या कोई भी ज़ाती अमल करते हैं, आपका इबादत जो है वो आपका और अल्लाह ताला का मामला है। लेकिन वो आपका ज़ाती फेल नहीं रहता जब आप जलसे के सामने खड़े होकर आप ये कहते हैं कि नून लीग को वोट देना गुनाह है, मुझे वोट देना सवाब है, और अगर मेरे मेंबर कोई किसी जमात में गए तो वो शिरक है। जबकि वो बदल रहे, मज़हब का मतलब बदल रहे, मज़हब का कॉन्सेप्ट बदल रहे, और वो आपको भूल गया। अगर आपके बकौल ये शिरक है तो सबसे बड़े शिरक करने वाले तो आप हैं, क्योंकि आपने खुद टीवी इंटरव्यूज में ये इकरार किया कि मैं एस्टैब्लिशमेंट को यूज़ करके अपनी हुकूमत में लोगों को वोटिंग के लिए लाया करता था। जब सेनेट के इलेक्शन हुए तो सबसे बड़ा शिरक तो आपने किया, जब आपने अपने, सिर्फ अपोजिशन के नहीं, अपने सेनेटर्स के लिए भी वोट करने के लिए, अपने MLAs को वोट करने के लिए भी आपने कंटेनर्स में एस्टैब्लिशमेंट से बंद कराया। तो आपकी मज़हब की डेफिनेशन जो है वो इक़्तिदार में होते हुए बदल जाती है, और जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपकी मज़हब की डेफिनेशन बदल जाती है। फिर मेरा जो बतौर माँ और बतौर पाकिस्तानी, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इस चीज़ पे बात करूँ। जब आप एक मजमे के सामने खड़े होकर आप मज़हब को इस्तेमाल करते हैं, आप ये कहते हैं कि आप क्या तशरीह कर रहे हैं, आगे आपके नौजवान खड़े हैं, लोग खड़े हैं, वो अपने घरों में इन कॉन्सेप्ट्स के साथ जा रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं उनको? आप उनको ये कह रहे हैं कि मैं आपको ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाता हूँ, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब जो है वो आपने बिल्कुल सियासत बना दिया। फिर आप ये कहते हैं कि अभी इसने रिसेंटली, हाँ, क्या बात की कि जो इसकी रिसेंट स्टेटमेंट थी वो क्या नहीं, वो तो थी और भी जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को जब आप ये कहते हैं, जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से चुना गया, नबूवत को या जो दीन इस्लाम का चला गया है, जो हो के चला गया, उसको टाइम बहुत खतरनाक हो गया। 70 गुजरा आपने बना दी हालत की है, प्लीज ये वो किस लिए बना, सबको राजी कर रहे हैं? पता करके बताओ। अच्छा मैडम, अभी आपने कहना बहुत खतरनाक हो गया उनके मुखालिफिन। मैं तो पहले ये कह रही हूँ कि ये सब मुल्क के लिए खतरनाक है, मुखालिफिन के लिए नहीं। अगर ये लाडला ना रहे तो मुखालिफिन को इसको डील करना ये काम है। मैडम, आप सिर्फ किस तरह लाख की लकीरें निकाली हैं तो हमें $1.25 अरब मिला है। अब हम जो है $500 मिलियन के वो पुर्जे खरीद रहे हैं जहाज़ों की, डिफेंस बजट 6% बढ़ा रहे हैं।
दूसरी तरफ आए दिन बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्यों हम अपनी बेसिक पॉलिसी को चेंज नहीं कर रहे कि अपने जो अखराजात हैं, बाकी अखराजात स्पेशली डिफेंस के जो सबसे बड़े अखराजात हैं, इन पे कब कट लगेंगे? देखिए, ये इंटरम में तो फैसले नहीं हो सकते। इंशाअल्लाह ताला अगली गवर्नमेंट जब आएगी, इलेक्ट होकर आएगी, 5 साल के लिए आएगी, तो ये पॉलिसी है। पॉलिसी बनाने के लिए ये अभी तो सिर्फ फायर फाइटिंग हो रही है मईशत को उसमें से निकालने के लिए, तो ये बेसिकली पॉलिसी डिसीजंस हैं जो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में जब एक स्टेबल हुकूमत आ जाएगी 5 साल के लिए, वो अपने पॉलिसी डिसीजंस खुद ली। अच्छा मैडम, ये अभी इमरान हुकूमत में भी लोग, जब इमरान खान की हुकूमत के ऊपर लोग उठाए जा रहे थे, लापता हो रहे थे, और आज भी उठाए जा रहे हैं और लापता हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे अभी एक सहाफ़ी साहब, आपने शायद कोई सवाल पूछा था, तो मैंने उनको ये कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि शहबाज शरीफ साहब ने वो मुदस्सर नारों के का जो केस है उसको टेक अप किया है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो इसमें कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाए। अच्छा मैडम, अभी आपने नाम एक लिया, इलेक्शन जो है आप पहले होते देख रही या फिर हुकूमत जो है इमरान खान को इस्लामाबाद का मार्च कर रहे, माजरा ईद में आ रहे, उससे निपटने की स्थिति ये आप ठीक है? मैं तो पहले ये बात कह चुकी हूँ, वो आजकल कह रहे हैं कि मैंने बड़ा इन स्विंगर कराया। मैं तो पहले ये कहूँगी कि इन स्विंगर जिसने कराया, आप अपने पहले कोच का नाम बताएं कि कौन सा कोच है जो आपको ये मशवरे दे रहा है। और दूसरी बात मैंने आपको अभी कही कि इमरान खान का जो लाडलापन है उसको प्रोटेक्शन देने वाले अगर अपनी इस चीज़ को छोड़ दें, इस रविश को छोड़ दें, तो इमरान खान को सॉर्ट आउट करना 3 दिन से ज़्यादा का काम नहीं है। क्योंकि कौन दे रहा है? तो अल्लाह बेहतर जाने कौन दे रहा है, वही जो कोच साहब है वही दे रहे हैं। अच्छा मैडम, अभी आपने नाम एक लिया देख अपनी रही प्रेस हैं कि कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में गुफ्तगू इलेक्शन करते कब हुए, होने जा रहे हैं।